Women Protection of Rights on Marriage Bill 2017. Madam, at the outset, during the introduction, the Honorable Minister quoted paragraph 26, 199 and 97. May I please request him through you to read paragraph 77. His own government stood up in Supreme Court and said, remove all forms of talaq. And when Justice U.U. Lalit asked, how will the marriage be dissolved? The Attorney General said that we will bring a new statute. So by bringing this legislation, you are taking a one step towards taking away all my personal laws, which under Article 24 of the Constitution guarantees me. This is what you're doing. Secondly, Madam Speaker, the Honorable Minister, he spoke about so many things. I want to know from him, how can, he might be a normal lawyer, but he's a pathetic and a failure law draftsman. Why I say that, Madam, is because he has failed to differentiate between a civil law and a criminal law. And what is a civil law, Madam? You know, one regulates action by an individual which affects the society at large. The other provides remedy to disputes with individuals. Now this bill extends the realm of criminal law to disputes which are interpersonal. And may I know from the Honorable Minister why I call him that he is not a good draftsman. In section 3 he accepts that triple talaq shall be void. Then why are you giving punishment in section 4? Because what is void, sir? I cannot increase your knowledge of law, but I can share my knowledge of law. That is, void action means an action with no force and effect, without legal efficacy, incapable of being enforced, or has no legal or binding force. Now, sir, you are doing this. You are accepting that triple talaq has not happened, but you are giving him a penal sentence. And fourth point, Madam, he has again wrongly misled the House. I don't want to quote Pakistan because my forefathers said, Jinnah, go to hell, will not go to Pakistan. But he is in so favor of Pakistan. So I have checked with a colleague of mine who did bar with me in Lincoln's Inn. He told me that in Pakistan, that particular section 61 has been stayed by the Supreme Court. 6th point, all the Muslim countries he has named, not a single Muslim country, I don't call them Islamic, Muslim country, do not have a penal provision. Please show me one penal provision of any Muslim country you say. And the penal provision in Pakistan, even that was state, says if you don't inform the arbitrary commissioner, then the penal provision comes into play. Madam, now here in a situation where a void action relating to a divorce has been made punishable. And what is void action? It is non-jurisdictional from the very inception. Now, in Islam, Madam, the 6th point, the concept of marriage is based on civil contract. I know my friend, Maulana Athar Dehelvi, his grandmother got married in 1942. She incorporated conditions in Nikah-nama that her husband should give her pan ka kharcha. Her husband should not force her to cook food. Her husband should send her every week to her father's house. This is civil contract. This is marriage in Islam is civil contract, and for that breach you are giving a criminal sentence. Now what is triple talaq? As rightly pointed out, Supreme Court has said set aside. Triple talaq, Madam, is a verbal and emotional abuse which comes under section 3, subsection 3 of Domestic Violence Act. It can be categorized as emotional verbal abuse and nothing more. By the whole, Madam, I request you look at the whole discussion which took place over here. You are trying to demonize the whole Muslim community. If you have empirical data, please place it on record. For us, we are saying it is a sin and it will go away because social laws have not succeeded in solving social problems. Take Child Marriage Act, Madam. 2011, census says 90 lakh non-Muslim children got married. You have laws. You have Dowry Act. 80% of dowry cases are non-Muslim. Aren't you concerned about that? Madam, abandoned women, Madam. 2011 census, out of 23 lakh, 20 lakh are Hindu women, 2.8 lakh are Muslims, 0.8 lakh are Christians. You have a vested interest. I charge this government that you do not want to bring a law to punish those husbands who are married but their wives are not living with them mentally. You have a vested interest in that. A law should be made that if a person marries his wife and abandons her or deserts her, he should be given a maximum punishment. But you have vested interest in that. Madam, 490, now
Minister for External Affairs spoke about bigamy, 494 IPC. Madam, bigamy, the second marriage is void. He doesn't understand the basic principle of law, but he's EM. I don't know. And then Mr. Ravi Shankar Prasad, sir, I commend you for saying these words. You are bringing this bill for equality, justice, justice, and gender equality. Sir, but you have not a single Muslim woman over there. Not a single Muslim MP you have. In which world are you living? And you expect the whole world to listen to your good word? No, sir. You are not walking the talk and you are stopped from your ideology. Madam, let me conclude, madam. When I say social laws cannot solve problems, every hour three women are raped. Every hour 5 women are assaulted, intent to outrage. 3 are kidnapped, abducted. That is why I say society has to be reformed. The minister has brought a bad law and it cannot. And moreover, can the minister tell me, if a Muslim man says talaq, 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 Supreme Court says, the law says the marriage is not void, the marriage exists. What happens, sir, if I hire a lawyer like you and you stand up and say in court, no, he will use Section 84 IPC insanity? Are you excluding Section 84, sir? You are not excluding 84. That is why I say this is not a law to provide justice to Muslim women, but you are giving a handle to Muslim men to do more injustice and to ensure that your dream of having more Muslim in jail will be realized. This is what you are doing. Please send it to, madam, please send it to a standing committee and marriage. Yes, yes. Madam, and why oppose this bill? Mr. Ravi Shankar Prasad, the Supreme, look at these words, madam. अब देखिए मैडम वो पागल हो गए बोल रहे, इतना तो पागल नहीं हूं मैं कि आपकी साजिश समझ सके. OACG, I have given Madam, you this is not good, madam. time. I know you are. Madam, please. Madam, why I oppose this law? Yes. The Honorable Law Minister, I want to request to you Yes. that you are forcing a Muslim woman to go and file an FIR. Okay, she goes and files an FIR. The Muslim, you are giving a handle to that Muslim man to say, okay, triple talaq is fine, is void, but I will wait for 90 days. What will happen after 90 days? Sushmita was right. If you are true to your intentions, provide a financial memorandum, create a corpus of 1,000 crores and do it. Lastly, madam, I end by saying, एक कहानी में बचपन में पढ़ा था मैडम. वो कहानी क्या थी कि नदी के किनारे बहुत से पानी में मछलियां बह रही थी और पानी को एंजॉय कर रही थी. एक बंदर आया और बंदर आकर उन मछलियों को निकालना शुरू किया और बाहर रखता गया पत्थर के ऊपर. वो मछलियां मरती रहीं. किसी ने आकर उस बंदर से पूछा कि भैया क्या कर रहा है तू, मछलियों को पानी से क्यों निकाल रहा है? तो बंदर ने कहा मैं इनको बचा रहा हूं. आप वही कानून बना रहे हैं, आप बचा रहे नहीं बल्कि खवातीन पर जुल्म कर रहे हैं. दैट इज व्हाई अपोज दिस एक्ट. मैडम, थैंक यू. Madam, I have given a notice under Rule 72. My primary objection to the introduction of this bill is twofold. One, the Parliament lacks legislative competence because this bill violates the fundamental rights. Secondly, madam, this bill lacks basic legal coherence and is inconsistent with existing legal framework. Madam, I have given this to you, madam. Yes. You have it in front of. Let me at least put it to the front of the house. Madam, you reject it. Let me put it in front of the house. Why I'm saying it's violating Article 415. Yes. Madam, it is a settled law that for discrimination to happen, lack of intelligent differentia, lack of rational nexus. Madam, talaq-e-biddat has already been called void, set aside. Now with this legislation, you are creating another law where is already provisions under Law on Domestic Violence Act exist. IPC sections are already there, and you cannot criminalize a similar action when law is there. Why it lacks rational nexus? Because you have 498 AIPC, you have Section 2022 of Domestic Violence Act, you have Section 125. Madam, let me complete. And Women's Protection of Divorce 1986. Arbitrary nature of punishment. Madam, arbitrary nature of punishment of 3 years. Supreme Court in EP Royapa clearly said that right to equality includes right against arbitrariness. Now, I will be put in prison, detention, for what? This is arbitrariness. Rohinton Nariman judgment is there, which the Honourable Minister knows very well. Lastly, madam,
there's an absence of consistency with existing legal framework. Why I say that, madam? Because this bill says that if a person is sent to prison, conjugal rights will remain. He will pay substance allowance. A person who's in jail will pay allowance, madam. What law are you creating? And lastly, in this house itself, the Honourable Minister accepted in the start question of 8-1 that consultation did not happen. Madam, this bill, if it is passed, will be an injustice to Muslim women, will lead to abandonment of Muslim women. What the bill is required is to make a law wherein 20 lakh women who are abandoned by married people who do not belong to Muslim community, which also includes our Bhabhi in Gujarat, should be given justice, madam. It is not being done by this bill. Mohammad Bashir. Yes. मैं हिंदुस्तान के वतन अजीज के 100% मुस्लिम खवातीन की तरफ से बहैसियत एक बाप, बहैसियत एक भाई, बहैसियत एक चाचा और बेटा इस ऐवान के जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की 100% मुस्लिम खवातीन इस बिल की पुरजोर मुखालिफत करती है और उसको रिजेक्ट करती है। दूसरी बात मैडम स्पीकर, ये जो बिल लाया गया, मैं इसकी मुखालिफत क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं क्योंकि हिंदुस्तान की आईन, हिंदुस्तान के संविधान की दफा 14, दफा 15, दफा 26 और दफा 29 और हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है जिसमें साफ तौर से लिखा गया कि इट गारंटीज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इस बुनियाद पर मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है कि हमारे वतन अजीज में होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। 377 का जजमेंट है, होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। एक मर्द और मर्द, एक खातून और खातून अपने साथ रहकर जो भी करना चाहे कर सकते हैं, उस पर आपको आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति है कि ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस्तेमाल हमारे खिलाफ होगा। दूसरी बात मैडम स्पीकर साहिबा, एडल्ट्री का कानून इस सरकार ने खवातीन पर, लेडीज पर एडल्ट्री का कानून लागू करने की सुप्रीम कोर्ट को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, आपको खामोश बैठे रहे, मगर ट्रिपल तलाक का मामला क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। मैडम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ले लीजिए कि अगर कोई पैसा लेता है पब्लिक बेनिफिट के लिए नहीं तो आपने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, मगर ट्रिपल तलाक को आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, यह कानून संविधान के खिलाफ क्यों है? आपने सही कहा उस चेयर पर से बैठकर कि यह प्रथा हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में। मगर मैडम स्पीकर, मैं बड़ी इज्जत के साथ आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में, वतन अजीज में, डिवोर्स के कानून में अगर किसी हिंदू का डिवोर्स होता है 1 साल की सजा क्यों है उसको, और मुसलमान को 3 साल क्यों मिलेगी? क्या यह आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? मैडम, यह कानून 377 में हार्म थ्योरी को एस्पाउस किया गया, हार्म थ्योरी के खिलाफ है यह एक्ट। और मैडम, मैं आपके जरिए से बताना चाह रहा हूं कि हमारे मंत्री साहिब ने बड़े पुरजोश तरीके से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। मैं आपके जरिए से उनसे सीखना चाह रहा हूं, जजमेंट का कौन सा हिस्सा है बता दीजिए जहां पर मेजॉरिटी जजमेंट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। खुदा के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इस ऐवान को मिसगाइड मत करिए। मैडम स्पीकर, मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं, बेंथम ने क्या कहा, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर कानून की जरूरत नहीं है, कानून बनाएंगे तो टिरनी है। आप टिरनी का आगाज कर रहे हैं। मैं हुकूमत के जरिए आपसे पूछना चाहूंगा मैडम कि मैडम, मैं जरा सुन लीजिए मैडम, मेरा प्लीज सुन लीजिए मैडम। ट्राइबल्स को आपने हिंदू मैरिज एक्ट से मुस्तस्ना रखा, क्यों रखा आपने? क्योंकि हम आर्टिकल 26 और 29 की बात करते हैं। मैं अभी मैडम यहां पर इतने बड़े बड़े काबिल लोगों से सुना कुरान के बारे में, हम क्या कहते हैं जो कुरान के बारे में, उनको फजीलतुल शेख कहते हैं, शेखा कहते हैं। अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, अब तो तौहीद और खत्म नबूवत का इकरार करना चाहिए आपको। मैं दावत देता हूं आपको, वो भी पढ़ लीजिए। मैडम, साबरीमाला का जजमेंट आया तो मान्यता की बात आती है आपकी तरफ से, क्या मेरी मान्यता नहीं है?
आपका फेथ और मेरा फेथ नहीं होगा मैडम? क्या ये कल्चर का वायलेशन नहीं है मैडम? क्या आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है मैडम? तो मैं आपसे ये हुकूमत के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है मैडम। अच्छा मैडम, हैरत की बात देखिए मैडम, आप एक महिला है मैडम, मैं इज्जत के साथ अर्ज कर रहा हूं, मुझे कहने दीजिए, आज एक मर्द कई खवातीन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, वो गुनाह नहीं है अब। मगर अगर कोई ट्रिपल तलाक कहेगा 3 साल की सजा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नॉन एस्ट, शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो किस बात की सजा देंगे आप? 377 हार्म थ्योरी आपके सामने, और मैडम 3 साल की सजा। कम्युनल राइट 148, 153A, 295 में 3 साल की सजा। और अगर कोई गाड़ी से टक्कर किसी को मारता है, कोई मर जाता है तो 2 साल की सजा। अरे बेंथम और मॉन्टेस्क्यू को पढ़ लीजिए, कोई नेशनल लॉ स्कूल के 4th ईयर के स्टूडेंट को बिठाइए, वो आपको ज्ञान दे देगा। और यकीनन ये बात सही है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको तजवीज पेश कर रहा हूं, कंडीशन लिखिए कि अगर कोई मुसलमान, निकाहनामे में लिखिए, अगर ट्रिपल तलाक देगा तो मेहर का जो अमाउंट होगा उसका डबल ट्रिपल देना पड़ेगा। उसका वायलेशन होगा तो जेल जाते आप। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है। आप ये भी बता दीजिए, आप ये भी लिख सकते थे कि अगर कोई 3 बार कहेगा तो 1 बार है, वो भी नहीं करते आप, उसका भी प्रोविजन है। मगर मकसद क्या है कि जेल को भिजाना। इनको खवातीन से मोहब्बत नहीं है। सब्सिडी अलाउंस कौन देगा? एक महिला क्या चाहती है मैडम? उसके सर पर घर रहे, छत रहे, टेबल पर खाना रहे, बच्चों के लिए फीस का इंतजाम हो जाए। आप करेंगे? आप करेंगे हम लोग? अच्छा मैडम, मुझे पूछना चाह रहा हूं, शायरा बानो तो बीजेपी में आ गई, क्या किया आपने उसका? बताइए, कुछ किया आपने उसके लिए? प्लीज मैडम मैं खत्म कर रहा हूं, मैडम खत्म कर रहा हूं, मैडम मैं खत्म कर रहा हूं, मैडम मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, क्योंकि ये जो कानून बनाने जा रहे हैं मैडम, ये रास तौर पर मुसलमानों की, आप देखिए मैडम, सेक्सुअल माइनॉरिटीज को 377 में चॉइस दे दिया गया। रिलीजियस माइनॉरिटीज को क्यों नहीं मिलेगा? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चॉइस जुरिस्प्रूडेंस है, मुझे नहीं मिलेगा। आपका कानून रिलीजन के खिलाफ है। आप पोलैरिटी को खत्म करना चाहते हैं, इससे साफ जाहिर हो गया। आप मुस्लिम खवातीन के इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि आपका निशाना उस वक्त साबित हो गया जब सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने खड़े होकर कहा कि हर कानून को मिटा दो। शाहनवाज हमारे मुख्तार साहब, शिया का जो सेगा का कानून है वो भी खत्म हो जाएगा, ख्याल रखिए। और आखिर में मैडम, पूरे मुल्क में मी टू मूवमेंट हुआ, मी टू मूवमेंट, खवातीन ने निकला। कहां वो मंत्री जो पिछले बार खड़े थे यहां पर? कहां गए बताइए? कहां गए वो बताइए? और आप उनको पनाह दे रहे हैं अपनी पार्टी में। ऐसे शख्स को तो निकाल कर फेंकना चाहिए था जिसने खवातीन की इज्जत लूटी, उनको दबाया, लीच था वो, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं मैडम? तोते चश्मा कहते हैं उनको। ऐसे लोगों को आपने पनाह दी और आप आकर हमको आईना दिखा रहे हैं। मैडम अब आप देखिए मैडम, ये मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे पास मुल्क में 84% हिंदू महिला बच्चियां 10 साल की शादी होती है, कानून नहीं बना दिए हम। क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? ये कौन करेगा इसका? डिजर्शन मैडम, सुन लीजिए, डिजर्शन, मैं आखिर 1 मिनट, डिजर्शन का कानून है, 20 लाख हिंदू महिलाएं डिजर्ट हो, कानून बनाइए ना, कानून बना हुआ है। क्या हुआ? सोशल ईवल का खात्मा तमाम मिलकर करना चाहिए। मैं एंड कर रहा हूं मैडम, कंक्लूजन में कह रहा हूं, मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि आपके कानून से, आपके दबाव से, आपके जोर से, आपके जबर से हम अपने मजहब को फॉरफिट नहीं करेंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम मुसलमान बनकर शरीयत पर चलते रहेंगे। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं मैडम। सर, I have given a notice under Rule 72. I am of the opinion that this bill lacks legislative competence. Sir, as you know very well, you are a learned person sitting on the august chair, that in our constitution we have Article 246. We define union and state list, and the concurrent list is in Schedule 7 of the Constitution. Why I say it lacks competence, sir, is because the clause 3 of amend section 16 of the Principal Act. Sir, this abrogation, it takes away the powers of the state. That is why I say that this bill lacks competence, sir. Now, it is a violation, clause 3 violates scheme set out under Article 246. The union is not competent to legislate on access to records or information by subject entries that fall under state. माननीय मंत्री जी, Sir. प्रश्न ये है कि
प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। विभाजन का निर्णय हाँ 224 ना 9। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। असदुद्दीन ओवैसी जी। जी शुक्रिया मोहतरम स्पीकर साहब। मैं इस बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं। ये मेरा कंसिस्टेंट अप्रोच है। तीसरी मर्तबा मैं इसकी मुखालिफत में खड़ा हूं और इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी बाकी रहेगी इस बिल की मुखालिफत करता रहूंगा। मोहतरम स्पीकर साहब, ये बिल हिंदुस्तान की आइन दफा 14, 21, 15, 26 और 29 की खिलाफ वर्जी करता है। ये हमारे आइन के बुनियादी हुकूक की मुखालिफत करता है। अब आप देखिए स्पीकर साहब कि क्रिमिनलाइज कर दिया गया ट्रिपल तलाक को। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, वाकई में आप नया हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। कि चौथी बात कि सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह बिल भी कहता है कि अगर किसी मुसलमान गलती से अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो तब भी शादी नहीं टूटती। ये बिल में कह रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि शादी नहीं टूटती। यहां पर जितने ऐवान में अराकीन हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं सर कि इस्लाम में 9 किस्म के तलाक हैं, जिसमें एक ट्रिपल तलाक है। और होता क्या है कि अगर किसी मुसलमान ने कह दिया 3 मरतबा एक साथ, आप ये औरतों के खिलाफ क्यों है सर? इसलिए है कि वो मुस्लिम मर्द पे आप तो केस बुक करेंगे, वो जाके पुलिस से कहा कि नहीं सर मैंने 3 नहीं 1 कहा। अब इस्लाम में यह है कि 3 महीने के बाद तलाक हो जाती है। आप उस मर्द को मौका दे रहे हैं, उस औरत पर जुल्म कर रहे हैं इस तरह का कानून बनाकर। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये मुस्लिम खवातीन के खिलाफ ये कानून है। चौथी बात सर, बर्डन ऑफ प्रूफ। सर बर्डन ऑफ प्रूफ कौन उस मर्द के घर से कोर्ट में जाकर उस कमजोर जिसके खिलाफ जुल्म किया गया उसके तायद में खड़े रहेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ आप औरत पे डाल रहे हैं। मुबारक आपको, ये आपकी वाकई में अच्छी सोच है। और सर आप शौहर को गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे। जेल में डालने के बाद क्या कोई शौहर जेल में बैठकर मेंटेनेंस देगा? अच्छा, फिर अगर कोर्ट ने फैसला लिया कि उसको हम 3 साल की सजा दे देते हैं, तो क्यों वो औरत 3 साल तक उस शादी में रहे? ये औरतों पर जुल्म नहीं है कि जेल में बैठा रहे और औरत उसके इंतजार में बैठा रहे और 3 साल के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो औरत ये कहे कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है? ये कौन सा इंसाफ है सर? ये आप क्यों औरतों पर जुल्म कर रहे हैं? उस औरत को उस शादी से निकलने का इख्तियार मिलना चाहिए जो आप नहीं दे रहे हैं। 5वीं बात सर, बिल में कहते हैं कि कोर्ट खातून को सुनेगा। सर होम मिनिस्टर बैठे हैं, किसी मर्डर केस में आप विक्टिम को नहीं सुनते? बेल देने का इख्तियार, डिस्क्रेशन, प्रोसिक्यूशन बहस करता है इंडिपेंडेंटली और कोर्ट फैसला देता है। ये आपने तय कर दिया कि ना मर्डर में है ना 307 में है। आप बोल रहे हैं कंपाउंडेबल कब होगा? आप महिला पर डाल रहे हैं। 498 में ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का कानून इस्तेमाल होगा तो एक ऑफिसर अपॉइंट होता है जो जाकर मियां बीवी से बात करता है, फिर वो रिपोर्ट देता है। आप तो शादी को खत्म कर रहे हैं, औरत को रोड पर ला रहे हैं और उसके शौहर को जेल में डाल रहे हैं। ये काम कर रहे हैं आप। अच्छा सर, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये तो एनडीपीएस एक्ट में होता है, टेररिस्ट एक्ट में होता है कि प्रिजम्पशन इनोसेंस नहीं रहता। आप वो भी छीन ले रहे हैं। मुबारक हो आपको। अच्छा सर, कोर्ट क्या कहे? नॉन एस्ट जब तलाक नहीं होता तो फिर आप किस बात की सजा दे रहे हैं? मैं भी एक कानून का स्टूडेंट हूं। एक्टस रेस है ही नहीं, एक्टस रेस हुआ ही नहीं, मगर आप कह रहे हैं कि हम सजा देंगे। अच्छा सर, पॉस्को एक्ट, आप
तो बड़ी नीयत से बना रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज विनर का आज स्टेटमेंट पढ़ा, वो कह रहे हैं सर कि गुजरात में बच्चों पर जो रेप होता है उस केसेस को मुकम्मल करने के लिए 55 साल लगेंगे, कन्विक्शन रेट 9% है। इस तरह के हिसास केसेस में आप सजा नहीं दे सक रहे और आप इंसाफ करने निकले। अच्छा, मुबारक हो आपको, आप शायद करेंगे। क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में 3 साल की सजा सर, 153A, 233 उसमें 3 साल, इसमें 3 साल को उससे मिला रहे सर। आपका 3 साल इज अगेंस्ट द बेसिक क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस सर। अच्छा सर, आप आखिर में खत्म कर रहा हूं सर, आपका मकसद क्या है? मैं हुकूमत से सिफारिश आपके जरिए बोलते हैं, आप लोग कुछ बोलते नहीं है, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं। इस्लाम में निकाहनामा है, आप एक कंडीशन लगाइए कि कोई मुस्लिम मर्द अगर अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो जो मेहर का अमाउंट होता है उसका 500% देना पड़ेगा। वायलेशन ऑफ अ कंडीशन में लीड टू कन्विक्शन एंड टू प्रिजन ऑल्सो। इस्लाम में शादी जो है जन्म जन्म का साथ नहीं है सर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस जिंदगी की हद तक है और हम उसमें खुश हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं जन्म जन्म का साथ है, नहीं बाबा, एक ही जिंदगी काफी है। अच्छा सर, मैं ये क्यों कहता हूं, अब सर जो शादी कर रहे हैं जिनके पास बीवी है उनको मालूम, इसीलिए सब हंस रहे हैं, सबको मालूम क्या तकलीफ है। बाहर आकर तो सर जिंदाबाद ये सब कहेंगे और घर में सब क्या होता है मालूम। अच्छा सर, आर्टिकल 26 का वायलेशन क्यों है? आर्टिकल 26 का वायलेशन क्यों है? आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है अपने राइट को प्रोटेक्ट करने का। सर, मैं हिंदुस्तान में मुसलमान होमोजिनस नहीं है, हनफी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं। अब आप मेरे को बताइए, मुख्तार नकवी साहब चले गए, उनसे पूछ लीजिए कि शियाओं में सेगा है, अहले हदीस मानते हैं, हनफी नहीं मानते। बार बार जो इस्लामिक ममालिक का एग्जाम्पल देते थे, आप पढ़ लिया करिए। अल्जीरिया में शाफाई है, केरला में शाफाई है, ईरान में शिया है, तो सर ये गलत तरीका है और हमको इस्लामिक ममालिक से मत मिलाइए वरना रेडिकलिज्म बढ़ेगा। मत मिलाइए हमको इस्लामिक ममालिक से मतलब नहीं, हमको हिंदुस्तान से, भारत से मतलब है। अच्छा सर, मैं आपको बात बता रहा हूं सर, अब आप देखिए सर, ये सरकार की नीयत देखिए, साफ नीयत। मी टू जब मूवमेंट चला, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट कहां गई? आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को डिसबैंड कर दिया, आपने अपने एमपी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ये आपकी महिलाओं से मोहब्बत, मुबारक हो आपको। अच्छा सर, 23 लाख हमारे भारत में हिंदू महिला हैं जो शादीशुदा है मगर अपने हस्बैंड के साथ नहीं है। कहां गई आपकी मोहब्बत भाई? सर खत्म कर रहा हूं सर, मैं कमजोर हूं सर, आप ही 2 तो भगा दिए, अब आप भी। अच्छा सर, मैं खत्म कर रहा हूं। मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम महिला पे जो रेप हुआ, एक भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ सर, मुबारक हो आपको, ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा सर, जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाइए, आप अभी तक नहीं लाते। सर क्यों नहीं लाते सर? आखिर में अगर वाकई में मोदी सरकार, मैं खत्म कर रहा हूं सर, लास्ट सेंटेंस, अगर वाकई में करना चाह रहे हैं, आप जलीकट्टू पे ऑर्डिनेंस लाए कि आर्टिकल 26 का मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, 29 का नहीं मिलेगा, और आप वाकई में महिलाओं की मदद करना चाहते हैं, तो मैं आपके जरिए से सरकार से कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम, हिंदुस्तान के वजीर दाखिला, हिंदुस्तान के वजीर कानून, बीजेपी के जितने महिला एमपी है उनको स्पेशल एयरक्राफ्ट में साबरीमाला लेकर जाइए, प्लीज लेकर जाइए सर। और मैं खत्म करने से पहले कह रहा हूं, यह कानून मुसलमानों को उनकी तहजीब, उनके तमद्दुन, उनके मजहब से दूर करने के लिए लाया गया है। सर हम जब तक भारत में रहेंगे, सुबह कयामत तक रहेंगे, अपने दीन पर रहेंगे, कुरान और सुन्नत पर रहेंगे। कानून बनाने से सोशल ईवल का खात्मा नहीं होता, वरना औरतों पर जो जुल्म हो रहा है वो कानून से खत्म नहीं हुआ। और राजीव गांधी ने जो कानून बनाया, मैं आपको कह रहा हूं उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। अपने इल्म में इजाफा करो और अपनी जहालत का सबूत मत दीजिए। यह कानून जुल्म करेगा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, इसीलिए मैं इसकी खिलाफवर्जी करता हूं। शुक्रिया सर। क्लेरिफिकेशन ओवैसी जी है सर, क्लैरिफिकेशन मेरा यही है सर कि 377 डिक्रिमिनलाइज हो गया होमोसेक्सुअलिटी,
अडल्ट्री डिक्रिमिनलाइज हो गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो आप कानून बनाने जा रहे हैं, आपके पास तादाद भी है सर, आप ये मैं मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्या 498 AIPC, क्या 125 CRPC, क्या 86 कैट, ये तमाम बेकार हैं, इसलिए आप कानून श्रीमती एडवोकेट मीनाक्षी लेखी जी। एक मिनट सर, एक अहम सवाल है, एक अहम दूसरा क्लैरिफिकेशन जानना चाह रहा हूं कि बेल के वक्त टेररिज्म में और मर्डर में आप एक्यूज को नहीं पूछते, आप कैसा कौन सा एडवोकेट ये आपने प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय मत विभाजन का निर्णय हाँ 303, ना 82 निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक को विचार में लेने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। असाउद्दीन ओवैसी जी, संशोधन संख्या 11। प्रश्न है कि श्री असाउद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री असाउद्दीन ओवैसी, संशोधन संख्या 12। सर, आई एम मूविंग अमेंडमेंट सर। प्रश्न असाउद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। अब मत विभाजन खड़े होकर मेरे विचार में विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गई है, इसलिए जो सदस्य इस संशोधन के पक्ष में खड़े हो जाए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, एक मिनट, जो संशोधन पक्ष में खड़े हो जाए। सदस्य संशोधन के विरोध में वे खड़े हो जाएं, जो विरोध ना के पक्ष में 302, निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ। संशोधन 12 अस्वीकृत हुआ। असाउद्दीन ओवैसी, संशोधन का 13। आई एम मूविंग अमेंडमेंट सर। प्रश्न ये कि असाउद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 13 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री असाउद्दीन ओवैसी, संशोधन संख्या 4। मूविंग अमेंडमेंट। प्रश्न असाउद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संख्या 14 को स्वीकृत किया जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में
में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री असाउद्दीन ओवैसी संशोधन संख्या 15। Sir, please allow me division, sir. You're ignoring me. I'm moving the amendment. प्रश्न असाउद्दीन ओवैसी प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों पर संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 7 और 8 विधेयकांग में जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में मत विभाजन जो सदस्य इसके पक्ष में है कि खंड 7 8 विधेयकांग बने, वह अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जो सदस्य इसके विरोध में अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। विभाजन का निर्णय हाँ 303 ना 8 निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 7 8 विधेयकांग बना। प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। तो मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पारित करने का आग्रह करता हूं। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।